اور آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 دفعہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. ہیلو فرینڈز, ست شری اکال, آداب, نمستے, ویلکم بیک ٹو آور چینل الہی ریاکشن. آج ہم اپنے چینل پہ لے کے آئے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریاکشن, جس میں ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں گریٹسٹ جرنی ان ہسٹری, اسرا والمعراج دا کوہستانی. تو کوہستانی کی ہم لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, اور ابھی ہم نے کل ہی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں تھی مدینہ کی ریاست. اس ویڈیو پہ آپ لوگوں نے بہت پیار دیا, آپ لوگوں کے اتنے اچھے اچھے کمنٹس آئے ہیں, اور اس پہ ہی سب نے بولا کہ آپ ان کی اور ویڈیوز دیکھیے. اور سچ میں یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں بہت اچھی بناتے ہیں, ہمیں بھی بہت پسند آتی ہے, کیونکہ پراپر فیکٹس کے ساتھ ایک ایک چیز ایکسپلین کرتے ہیں تو ایک ہر چیز سمجھ میں آتی ہے. تو بہت اچھی لگتی ہے مجھے ان کی ویڈیوز. تو دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں کیا, پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. واقعی میں یوٹیوب میں بہت کم ایسے چینل ہیں جو فن اور فیکٹ کے ساتھ آپ کو ہر چیز کی انفارمیشن دے. تو میرے لیے یہ چینل بہت زیادہ فیوریٹ ہو چکا ہے, دا کوہستانی. مجھے ان کا کنٹینٹ, ان کا ویڈیو بنانے کا جو اسٹائل ہے وہ بہت پسند آتا ہے, کیونکہ بہت لاجیکل اور بہت انٹیلیکچوئل کنٹینٹ ہے ان کے چینل پر. اور جب بھی میں ان کی ویڈیوز پہ ریئیکٹ کرتی ہوں تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی کچھ اچھی نالج ہمیں ملتی ہے. تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل بھی بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی نیو کنٹینٹ ہے. تو چلیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں, پھر اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے. تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو. انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر, 7 آسمانوں کی سیر, الاسراء والمعراج. You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. شب معراج میں سدرۃ المنتہا. یہ اتنا عظیم سفر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل اور سخت ٹائم میں ہوا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے قریب لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات. پھر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھروں سے مارا گیا کہ جوتے خون سے بھر گئے. اینڈ ٹو ٹاپ دیٹ, مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے, اللہ نے اسی سب سے مشکل ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی, 7 آسمانوں کی سیر. A journey like none before. یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11ویں سال میں ہوا, which means almost بالکل middle میں. اور یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. 7 آسمانوں کے اس سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت سخت زندگی گزار رہے تھے, لیکن اس سفر کے ڈائریکٹ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی, جہاں ایک نئے ریاست کے لیڈر اور بادشاہ کے طور پر ان کی زندگی بالکل بدل گئی. ایک دن مکہ میں آدھی رات کو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مکہ سے جروسلم بیت المقدس کی طرف لے گئے. یہ براق نام برق سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے لائٹننگ, اور ہو سکتا ہے اس کا یہ نام اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے اس کو ملا ہو. بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی, اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. پہلے آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا, اور یہ دروازہ ہمارے دروازوں جیسا نہیں تھا. پہلے آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی. ان کے رائٹ سائڈ پر جنت کے لوگ اور ان کے لیفٹ سائڈ پر جہنم میں لوگ تھے. آدم علیہ السلام یونیورس کے پہلے انسان تھے, اور دنیا کے سارے انسان انہی کی اولاد ہیں. اور آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 دفعہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں ان کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے. عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزنز تھے, جنہیں کرسچینٹی میں جیزس اور جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے. یہ دونوں پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے رومن امپائر کے اسٹیٹ فلسطین میں پیدا ہوئے, اور ان دونوں کزنز کی زندگی بہت ہی مشکل حالت میں گزری. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا, اور ان کی شہادت کو آج بھی لوگ کربلا میں امام حسین کی شہادت سے کمپیئر کرتے ہیں. ان کے کزن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا, لیکن اللہ نے آخری ٹائم انہیں دنیا سے اٹھا لیا. قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 دفعہ ہوا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی. یوسف علیہ السلام آج سے آلموسٹ 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے. اینڈ وی آل نو کہ کیسے وہ وہاں سے ایجپٹ, جو اس زمانے کا سپر پاور تھا, اس کے وائس رائے مطلب بادشاہ کے بعد سب سے طاقتور وزیر بنے. یہ ایسے تھا کہ آج کوئی یو کے کا پرائم منسٹر بنے. یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ ہوا ہے, اور یہ واحد پیغمبر ہے
जिन की डिटेल्स कुरान में बाइबल से भी ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चौथे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसानों में से थे। आदम अलैहिस्सलाम और शीत अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम को इंसानों का तीसरा नबी माना जाता है और दुनिया में सबसे पहले जुल्म के खिलाफ जिहाद इन्होंने ही किया था। इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया का पहला साइंटिस्ट भी समझा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली दफा दुनिया में पेन कलम यूज किया था। पहली दफा आसमान में स्टार्स और प्लैनेट्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करके इंसानों की जिंदगी आसान बनाई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 2 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मेरे भाई हारून को भी मेरे इस मिशन में शामिल करें। तो इस तरह हारून अलैहिस्सलाम भी पैगंबर बने। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए चूज नहीं किया कि वो उनके भाई थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से थे। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से फिरौन के घर में पले बड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें बनी इसराइल की किताबों और स्क्रिप्चर्स का इतना इल्म नहीं था। तो उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसके पास इन सारी चीजों का इल्म हो, और वो थे हारून अलैहिस्सलाम। और आज तक यहूदियों में सबसे ज्यादा स्कॉलर्स हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जिसकी वजह से हारून अलैहिस्सलाम की औलाद को यहूदियों में एक स्पेशल स्टेटस हासिल है, जिस तरह इस्लाम में सैयदों को हासिल है। हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 20 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे पैगंबर से जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा किया गया है, 136 टाइम्स, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी को आज तक दुनिया की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और आउटस्टैंडिंग स्टोरी समझा जाता है। और आज भी बुक्स, कॉमिक्स और इवन हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म्स मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होती है, जैसे कि सुपरमैन, हैरी पॉटर एंड मैनी अदर्स। ये सारे स्टोरीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुके हैं। And I was like, come on, this is Musa alayhi salam's story. हुआ ऐसे कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने 11 भाइयों को भी इजिप्ट में आबाद किया और काफी जनरेशंस तक वो उधर ही ये रहे तो और बहुत आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्प वो बात है, इजिप्ट के हमें ये सबसे तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं और रिच मालूम कम्युनिटी था। बने एज हाँ, सही बात है, लेकिन नहीं ये पता देखकर था। मिस्र के लोग इनसे डरने लगे और उन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू किया और आखिर सारे यहूदियों को गुलाम बना दिया और बनी इसराइल मिस्र वालों के 400 साल तक गुलाम रहे, जिसमें उन्होंने उन पर बहुत जुल्म किए। आखिर 400 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकाल दिया। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें और आखिरी आसमान पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उनकी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पिछले हजारों साल से दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स एब्राहमिक रिलीजन्स रहे हैं और आज भी दुनिया की 60% आबादी इन्हीं एब्राहमिक रिलीजन्स को फॉलो करती है। और हर दिन 5 वक्त की नमाजों में मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए स्पेशल दुआ करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया, जिसका हर दिन 70,000 नए फरिश्ते तवाफ करते हैं। सिदरतुल मुंतहा आखिरी बाउंड्री है, वो आखिरी हद है, मखलूक कोई इससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत थी, इसीलिए वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को छोड़कर अकेले आगे बढ़े और अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में सहाबा ने पूछा कि क्या आपने अंदर अल्लाह को देखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कैसे देखता, वहां नूर, लाइट का पर्दा था। यहां इस इतने अजीम सफर का असली मकसद जाहिर हुआ। यहां इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म मुसलमानों पर फर्ज हुआ, नमाज, जो पिछले 1400 साल से पूरे दुनिया के कोने कोने में अदा हो रही है। इससे पहले नमाज फर्ज नहीं हुई क्योंकि मक्का में मस्जिद बनाना इम्पॉसिबल था, लेकिन आसमानों के इस सफर के बाद मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की और वहां इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई। और इसी नमाज की वजह से मदीना में एक ऐसी डिसिप्लिन्ड और मजबूत कम्युनिटी बनी जिसने आगे जाके कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर, 2 बड़ी सुपर पावर्स को फतह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फर्ज हुई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हुए, उनकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आपकी उम्मत 50 नमाजें कभी भी अदा नहीं कर सकती, तो आप अल्लाह के दरबार में वापस जाएं और उनसे इसे कम करने की रिक्वेस्ट कर। सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और अल्लाह से रिक्वेस्ट की, जिस पर अल्लाह ने नमाजें 50 से कम करके 40 कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो उन्होंने कहा कि 40 भी
इम्पॉसिबल है। Impossible वापस जाकर अल्लाह से रिक्वेस्ट करें कि वो 40 से भी कम करे। और इस तरह थोड़ा आना जाना चलता रहा और आखिर नमाजें 5 पर फिक्स हुई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपकी उम्मत 5 नमाजें भी दिन में अदा नहीं कर सकती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद अल्लाह से नमाजें और कम करने में मुझे शर्म आती, मैं 5 नमाजों पर राजी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर में जन्नत, दोज़ख और यहाँ से गुनहगार ये लोगों की start हुई सजाएं 5 नमाज़। दिखाई दी। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरूसलम वापस बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक काफिला दिखा जिनका एक ऊंट उनसे भाग गया था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का पहुंचे तो मक्का वाले सारे सो रहे थे, which means ये सारा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में किया था। अब ये कैसे पॉसिबल है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक What is time? टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, Time is not absolute. जिसका मतलब है कि अगर एक शख्स तेज मूव हो रहा है और दूसरा अपनी जगह पर खड़ा है तो ये दोनों टाइम को बिल्कुल डिफरेंट महसूस करेंगे। और अगर कोई लाइट के स्पीड के करीब ट्रेवल करे तो उसके लिए टाइम बहुत ही स्लोली पास होगा। एंड एज वी नो, बुराक का नाम ही उसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से रखा गया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रात बहुत लंबी थी और बाकी सारों के लिए ये एक नॉर्मल रात थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुंचे, उनको पता था कि अगर वो ये सारी बातें मक्का वालों को बताएंगे तो मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को क्लियरली कंप्लीट स्टोरी सुना दी, जिसकी वजह से मक्का वालों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगे, क्योंकि उनको पता था कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस कभी भी नहीं गए। लेकिन उसी टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, इसी तरह जिस तरह आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में पूछते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हर बात का जवाब देते रहे, जिससे वो सारे बिल्कुल शॉक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस काफिले का भी बताया जिसका ऊंट भाग गया था और उसके थोड़ी ही देर बाद वो काफिला भी पहुंच गया और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सच है, जिससे मक्का वाले और भी शॉक हो गए। लेकिन ये ऐसा वाकया है कि जिसे आज भी और उस जमाने में भी मानना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से कुछ कमजोर ईमान वाले मुसलमान भी इस्लाम से फिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। लेकिन जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये यकीनन बिल्कुल सच बात होगी, जिस पर उनका नाम उस दिन से अबू बकर सदीक पड़ा। ये सफर कोई मामूली सफर नहीं, बल्कि इसने इस्लाम की सख्त दिन खत्म करके इस्लाम के उरूज के दिन शुरू किए और इससे अगले ही साल मदीना से 72 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बादशाह और लीडर के तौर पर मक्का से मदीना की तरफ ले जाने के लिए आए। क्या बात है यार, मतलब मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि मुझे इनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, पर मैं ये कह सकती हूँ मुझे आज की वीडियो इनकी इस चैनल की अब तक की सबसे अच्छी लगी है। मतलब कैसे उन्होंने बताया कि कैसे रसूलुल्लाह जी को स्टार्टिंग में मतलब वो पत्थर पड़ते थे, और जो कि ऐसा होता है, अल्लाह के जो प्यारे बंदे होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, मतलब जो रब के प्यारे होते हैं उनको पहले चोटें लगती हैं, और वैसा ही उनके साथ हो रहा था। उसके बाद जो उन्होंने सारी स्टोरी सुनाई 7 आसमानों की, कि उन्होंने 7 बार आना जाना किया और वो कहाँ कहाँ गए, कैसे उनको सामने मतलब उन्होंने 5 नमाजों वाली भी पूरी स्टोरी सुनाई, वो सारा कैसे हुआ। इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो थी यार, मतलब मज़ा आ गया देख के कि मतलब सच में आज की वीडियो मेरे लिए तो बेस्ट वीडियो थी, मुझे बहुत पसंद। इस वीडियो के साथ मैं श्योरली कह सकती हूँ कि बहुत सारे डाउट क्लियर हुए कि कैसे 5 नमाजों का जो था वो दौर शुरू हुआ कि 5 नमाज अदा की जाएंगी पूरे दिन में, और किस तरीके से ये जो है सिलसिला 50 से शुरू हुआ, फिर 40 पर आया और उन्होंने आखिर में 5 नमाज को इस चीज़ की जो है वो सहमति दी। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए तो जाननी बहुत मुझे बहुत पसंद है, ये सब चीज़ें जानना कि कैसे इस्लाम धर्म में इन सब चीज़ों का दौर शुरू हुआ। लेकिन रसूल अल्लाह जी की जितनी तारीफ की जाए
कि वो खुदा के कितने नवाजे हुए बंदे थे कि मतलब खुदा उनसे इतना प्यार करते थे कि हर वक्त वो उन्हें अपना उनके आसपास होने का वो उन्हें महसूस कराते रहते थे कि मैं उनके पास ही हूँ। तो बाकी मैं आज की वीडियो तो मुझे तो बहुत पसंद आई। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।